Good morning, class 11 students. Today we are starting a new chapter, linear inequalities. This is just like linear equations. जैसे आपने linear equations पढ़े हैं वैसे linear inequalities होती हैं. And I'm sure some of you must have studied in class 10th also. So suppose this is our greater than sign, less than sign, greater than or equal to, less than or equal to. यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू में भी ट्रू है, लेस देन और इक्वल टू में ट्रू है, ये सिर्फ ग्रेटर देन में ट्रू है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. ये भी स्ट्रिक्ट है, ये स्लैक है, ये भी स्लैक है. एंड दिस इज आवर इक्वल टू साइन, राइट. सो रूल्स क्या होते हैं? रूल्स ये है कि वी इफ यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ द साइड्स, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज. सपोज करो कोई बोलता है आपसे x इज ग्रेटर देन 2, राइट, और आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 2 ऐसे आएगा. जबकि इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इक्वेशन विल रिमेन द सेम. बट इनइक्वालिटी में अगर आप दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज. सो माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 2, राइट. सेकंड थिंग, अगर सपोज कोई आपसे बोलता है x इज ग्रेटर देन x बाई 2, तो आप या फिर 2 बाई एक्स ऐसे ले लेते हैं. ऑल्दो ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है बट स्टिल x इज ग्रेटर देन 2 बाई एक्स, आप इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. यू कैन ट्रांसफर इट लाइक दिस x माइनस 2 बाई एक्स is greater than 0. ये करेंगे आप, not that you will multiply it by x on both the sides because x here is a variable और वेरिएबल का साइन आपको नहीं पता कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है या कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है. तो अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हैं और सपोज करो x लेस देन 0 हो गया, then the sign of inequality needs to be changed. So to avoid this what we do, we can just take it the LCM that way. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. x यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. So this is some rule. ये रूल आपको पता होना चाहिए. This is a very important rule, ठीक है, of solving inequalities. You already know what is meant by strict and what is meant by slack. Now अगर suppose करो आपसे कोई solve करा, suppose ये बोलते हैं solve this, right, is greater than suppose something like this, x plus 3 upon 5. Now if the everything is in the here, the numbers are in the denominator, then you can take the LCM. That is not a problem. Solve it just like an equation. Equation की तरह solve कर सकते हो आप इसको. तो आप क्या करेंगे, just take the LCM or you can bring it this side and greater than equal to 0 ये भी लिख सकते हो. Normally this method should be applied. X plus 3 upon 5 greater than equal to 0. Take the LCM as 10. Multiply this by 5. X minus 2 minus 2. X plus 3 greater than 0. And then solve it. 5x minus suppose करो whatever 10. Minus 2x minus 6 is greater than. Now we can multiply by 10 because we know 10 is a positive number. So this will become 0. Okay. Now this will become 3x minus 16 is greater than 0. 3x is greater than 16 or x is greater than 16 by 3. So this is how you solve a linear inequality. Just like an equation but negative sign का ध्यान रखना बस. That's the only thing. Suppose the question comes like this: minus 2x plus 3 is less than minus 5x minus 7, something like this, and you are bringing everything on one side. That is allowed. Just like equation, it's allowed that minus 2x plus 5x को आप इधर ला सकते हो, ठीक है ना. So we can multiply or we can just write 5x minus 2x is less than minus 7 minus 3. So you can write 3x is less than minus 10, x is less than minus 10 by 3. That is allowed. Okay. What is not allowed we have already discussed. That is that you have to be very careful about. Another thing is suppose करो ये क्वेश्चन ऐसा आता है minus 2x plus 3 less than 5x minus 7. Now this is minus 7x is less than minus 10, minus 7x is less than minus 10. So now we have to multiply by minus 7. So this is 7x is greater than 10 or x is greater than 10 by 7. So see how things have changed just by multiplication of a negative sign. So I'm sure this is a very simple exercise for you. There are some word problem also that we can discuss in the next class. But right now what you can do is just try this linear inequalities. Although even the word problems are very simple. Like suppose I'll read this. Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. दो टेस्ट में उसके 70 और 75 आए हैं और एवरेज इसको चाहिए 60 मार्क्स, ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू, सपोज द थर्ड टेस्ट और एवरेज एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ठीक है. ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है एटलीस्ट का मतलब.
और एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज एट लीस्ट. एट लीस्ट का मतलब इसमें आप लेस देन का साइन मत लगाना. एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू. कम से कम उतना तो चाहिए, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू. आई जस्ट राइट अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू. एट लीस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है. और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू. लेस देन और इक्वल टू. आप ऐसे समझ लो, एट लीस्ट को अगर हिंदी में वैसे ऐसे बोला जाएगा कम से कम, तो कम से कम में कुछ कुछ बच्चे होते हैं लेस देन का साइन लगा दो ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू. और एट मोस्ट में लेस, ज्यादा से ज्यादा, तो लेस देन और इक्वल टू, ज्यादा में लेस. इससे कंफ्यूज मत होना हिंदी और इंग्लिश में. इंग्लिश में इसको लेस देन और इक्वल टू बोल रहे हैं, पर वो बोला ऐसे ज्यादा से ज्यादा. और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहे हैं, पर वो बोला ऐसे आता है कम से कम. इतना तो होना ही चाहिए, मतलब उससे अधिक ही होना चाहिए ना. और इसमें ज़्यादा इतना होना चाहिए, मतलब उससे कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो एट लीस्ट आ गया, एट मोस्ट आ गया. अब स्टूडेंट ने 70 और 75 मार्क्स स्कोर करे पहले दो टेस्ट में, तो 70 प्लस 75, और थर्ड टेस्ट में सपोज करो उसका x मार्क्स आया, और डिवाइड बाय उसने 3 कर दिया. और इसको अपने को चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 60 चाहिए. तो थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स चाहिए उसके, अधिक से अधिक, ठीक है. अपर लिमिट दे रखी हो, सपोज करो 100 मार्क्स. दैट इज अनदर पॉइंट. 70 प्लस 75 हो गया, कितना हो जाता है 70 प्लस 75, और ये तो 180 हो गया 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है. और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 145, ठीक है. 145 और x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 145, सो आई थिंक दैट इज 35. तो 35 मार्क्स से अधिक उसको चाहिए या बराबर, टू गेट एट लीस्ट 60 एज एन एवरेज, राइट. और अगर अपर लिमिट 100 है, तो देन ही शुड स्कोर बिटवीन 35 टू 100. So this way you have to do all the word problems also. Try. This is a very interesting thing. आपको लगेगा मैथ्स में something very easy and interesting has come up now after all the difficult chapters that we have done. Okay, so keep trying them, and I'm sure you will be able to do these questions, right? So we'll discuss this kind of question in the next class.